Yasin, but by the same logic, Rahul Gandhi, according to what he said, he would have wanted one uniform 18% tax on GST and on school uniform. Can I just respond to this, Tushar please? Gupta? So may I? Okay. Can I just respond to? I'll come back to you, Zafar bhai. Tushar wants to say, respond to what Tehseen has said. See, a Mercedes and a Maruti cannot have the same GST rate because the families affording these two respective cars do not have the same household income, not even by any stretch of imagination. And I would be very happy if Tehseen gets a made in India yacht and takes us all for a holiday while paying 40% GST on it. But nevertheless, पीयूष जोशी जी ने एक पॉइंट रेज किया. पीयूष जोशी जी देखिए, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट अपनी साइड है, पर आप ये नहीं कह सकते कि हमने पंजाब में फ्लाइट लैंड करने दी. पंजाब का एयर स्पेस सॉवरेन एयर स्पेस नहीं है, वो भारत का एयर स्पेस है. और उस फ्लाइट में जो डिपोर्टेड इमिग्रेंट्स थे उसमें से ज्यादातर पंजाब के थे. 115 में से 65 से ज्यादा पंजाब के थे. तो ये गलत बात मत करिए. प्रनेश, फाइनल पॉइंट अगेन, माय पॉइंट इज, why is the Congress not come up with their own GST structure? For years they kept abusing the GST tax, even when the taxpayer base expanded in the last 8 years, almost doubled to 1.15 crore entrepreneurs, MSMEs. But Congress never came up with its own structure because their structure was a single rate. Now you tell me, Tehseen gave a very good example. Can a Maruti and a Mercedes have the same GST rate? Simple. Tehseen? I totally. First of all, if I had a yacht, I would take Pranesh and you, but the yacht would be called GST Escape. I promise you, I name it. But let me make that, because in the middle of nowhere, you'll ask me to get down. वो मैं नहीं करना चाहता. You are the only one who kicks me out. I won't do that. But jokes apart, look, I agree with what Tushar is saying basically, but I'll tell you what's happened in the complex structure. A Mercedes C-Class petrol is 40% and a Mercedes C-Class diesel is 18%. So look, you see the complication still exists. All I'm asking you to do is simplify. If I read out a GST rules for cars, below 4 meters is this much, above 4 meters. How is Rahul Gandhi simplifying by saying, let's have 18% tax on everything? Oh. So that is not simplification. So what the Rahul and the Congress method was, and I'll be very brief, was to have two tax rates till you reach one, which is the ultimate goal, that you have one but tax rate. But this you are saying it was not part of the manifesto. I have a copy of both these manifestos, 2019, 2024. ये आप बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है. Congress is saying we control the system. Zafar Islam No, he wanted to cap it. देखिए ऐसा है, मैं जवाब देता हूं उसका. ये कांग्रेस का डीएनए है. इट इज देयर डीएनए. दे विल ऑलवेज बी फोकस ऑन रिच एंड हायर अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिकॉज दे नो दैट उनके पार्टी में और उनके लोग यही लोग हैं. बट गरीब की चिंता करने वाले ये कभी ना थे और ना कभी होंगे. आज के प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को दोहराया है और करके दिखाया है कि द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज द प्रायोरिटी फॉर अस. मैं डॉक्टर जोशी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर उसके बाद हर्षवर्धन जी पे जाऊंगा. डॉक्टर जोशी, इफ यू हैड टू गिव क्रेडिट फॉर जीएसटी ओवरऑल, हु वुड यू गिव क्रेडिट टू? प्राइम मिनिस्टर मोदी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, हु कंट्रोल्स द सिस्टम? Sir, I answered this, in the opening statement when I said that the Aam Aadmi Party welcomes this step, but it's too late, too little. That is the thing. नहीं, क्रेडिट किसको देंगे? डॉक्टर जोशी, पीयूष भाई, नहीं पीयूष भाई, क्रेडिट किसी को अगर देना है आपको, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में, तो किसको देंगे? एक के पास सरकार है, दूसरे के पास सिस्टम है. जनता के प्रेशर को, उस आम व्यापारी को जिसका जो घाटा है वो 33% हो चुका है. 33% व्यापार घट चुका है बिकॉज ऑफ ई-कॉमर्स कंपनी. पीयूष भाई, एक बात बताइए, जनता के दबाव में जो सरकार काम कर रही है वो डिक्टेटोरियल हो सकती है क्या? तानाशाही बंद करो, ये जो हर रोज ऑपोजिशन लीडर्स चिल्लाते हैं, प्लकार्ड पे लिखते हैं, ये कैसी तानाशाही है सर कि आप लोग जो कहते हैं वो सरकार मान लेती है? प्रोफेसर मोंडोल ऑल्सो सेड 1-1.5 साल में हमारे चिट्ठी लिखने के बाद ये बात मान ली गई. तो ये डिक्टेटरशिप है क्या? डिक्टेटरशिप में ऐसे होता है? हर्षवर्धन जी, देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पीयूष भाई आज जो है क्या क्या बात कर दे रहे हैं. अभी वो कह रहे हैं कि पूरा बिजनेस चौपट कर दिया. कितना 30% बोल दिया ना कि बिजनेस खत्म हो गया. आपने, अगर मैं ठीक सुना तो शायद आपने 30% बोला. जीएसटी टैक्स पेयर बेस था 2017 में 66.5 लाख. अभी कितना है? 1.51 करोड़, यानी 2.5 गुना बढ़ गया, 250%.
फिर दूसरा आंकड़ा सुनिए, 2025 FY 2025 जीएसटी कलेक्शन 22,08,000 करोड़। CAGR अगर कहें तो 18% का है, 18% का। एक तीसरा आंकड़ा भी मैं आपको बताता हूं, 82,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ हम एवरेज पहुंच गए बिना बिजनेस हुए। कम से कम पीयूष जी, आंकड़े जो हैं वो तो झूठ नहीं बोलते हैं ना। और जब हम आज ये कह रहे हैं कि सरकार ये रेवेन्यू ट्रांसफर कर रही है, वो इस रेवेन्यू पर खड़ी है जहां उसको लगता है कि हम रेवेन्यू जो डेफिसिट है उसको मेकअप कर लेंगे, नंबर 1। दूसरा, हमारे पास जो कुछ आ रहा है, टैक्स का स्ट्रक्चर हमने ठीक किया, जीएसटी पोर्टल की मुश्किलें ठीक हो गई, लेकिन जो उद्यमी है उसको और जो कंज्यूमर है उसको, उन दोनों को अब अपना हिस्सा मैं बस चाहिए, एक इसको सरलता भी जैसे चाहिए। जीएसटी तो सरकार ने- सिंप्लीफाई किया जा रहा है, मैं एक बस फैक्ट चेक सिंप्लीफाई करने के लिए व्यूअर्स के लिए, कांग्रेस ये क्लेम कर रही है कि हमने कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी को अपोज किया, और उसका फैक्ट चेक यह है कि राहुल गांधी जी की पार्टी ने अगर अपोज किया था तो 2016 और 17 में राज्यसभा में वोट क्यों कर दिया समर्थन में? तो कांग्रेस पार्टी अपना मन बना ले, क्योंकि इवन तहसीन पूनावाला डज नॉट अग्री with what Congress manifesto is saying, what Rahul Gandhi is saying, and Supriya Shrinate is saying. Now, if they want credit, they should be clear what they want the credit for. I thank some of you for joining us on debate number 1.